Welcome to our physics class. Myself Sunil Kumar, lecturer in physics, Government Girls Senior Secondary School, Mandi Harziram, Malot, District Shri Muktsar Sahib. Today we are discussing the topic from class 12th, and the topic is from optics, and subtopic is refraction at spherical surfaces. In today's class we will discuss about refraction at spherical surfaces when the surface is convex and also when the surface is concave. These are the learning objectives of today's class. In this class we will learn to derive a relation between u, v and f when we are given a spherical surface and refraction is occurring at convex and concave spherical surface. So first of all, you might be knowing the concept of refraction. अपने पिछलियां क्लासां च बेटा तुसी refraction बारे पढ़िया होएगा। ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵੇਵ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮੀਡੀਅਮ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਕਿਸੇ ਮੀਡੀਅਮ ਚ ਐਂਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੀਡੀਅਮ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਪੋਜ਼ ਵਨ ਇਜ਼ 에ਅਰ, ਵਨ ਇਜ਼ ਵਾਟਰ। ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ 에ਅਰ ਤੋਂ ਵਾਟਰ ਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਾਟਰ ਤੋਂ 에ਅਰ ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਦੈਨ ਇਟ ਵਿਲ ਬੈਂਡ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੀਫਰੈਕਸ਼ਨ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਕਲਾਸਿਸ देयर आर टू लाज ऑफ रिफ्रैक्शन। जो फर्स्ट ला है आपको ये दसदा है भी जो इंसीडेंट रे है, रिफ्रैक्टेड रे है और नॉर्मल है, दे आर लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है। और सेकंड ला बेटा ये है द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसीडेंस एंड साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, उन्होंने दी जो आप रेशो लईए दैट इज इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट, दैट इज नोन एज स्नैल्स ला। ठीक है। इस ला नूं आपां स्नैल्स ला भी बोलते हैं। ये तुसीं अपनी लोअर क्लासिस दे अंदर पढ़ चुके हो। उस तो बाद अपने को साइन कन्वेंशनस का कॉन्सैप्ट आता है। ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ डिस्टेंस है वो सारे डिस्टेंस ਆਪਾਂ पोल तो मैजर करने हैं फर्स्ट। ठीक है, पहली गल। सैकेंड, ਜਿਹੜੇ डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ इंसीडेंट रे ऑफ लाइट ने all those distances are considered as positive। ठीक है। और जेकर कोई डिस्टेंस इन द डायरेक्शन opposite to the incident ray of light है ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਰਟੀਕਲ ਨੂੰ। देयर आर सर्टेन assumptions ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਅਸਿਊਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦਾ ਆਬਜੈਕਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਸਮਾਲ, देयरफॉर ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆਬਜੈਕਟ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੈਕਿੰਡ, ਜੋ ਅਪਰੇਚਰ ਹੈ ਸਫੈਰੀਕਲ ਸਰਫੇਸ ਦਾ दैट इज ਵੈਰੀ ਸਮਾਲ। ਐਂਡ ਦਾ ਥਰਡ ਇਜ਼ द इंसीडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे, they are making very small angle with the principal axis। अपने principal axis नालों बहुत छोटा एंगल बना रहे हैं। ठीक है। और एक अपने को मैथमेटिकल प्रॉपर्टी है साइन ऑफ द एंगल इज इक्वल टू एंगल, मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा। वी विल यूज दैट प्रॉपर्टी एंड वी विल राइट कि साइन ऑफ आई इज इक्वल टू आई एंड साइन ऑफ आर इज इक्वल टू आर। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਯੂ, ਵੀ ਤੇ ਆਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਰੀਫਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਐਟ ਦ ਸਫੈਰੀਕਲ ਸਰਫੇਸਿਸ। ਨਾਓ ਵੀ ਵਿਲ ਡਿਸਕਸ ਪਾਰਟ 1 ਆਫ ਆਵਰ ਟੂਡੇਜ਼ ਆਰਟੀਕਲ refraction at convex spherical surface when light travels from rarer to denser medium and when the image formed is real। Hanji students, now we are discussing the first part of our today's article, that is refraction at convex spherical surface when light is going from rarer to denser medium and the image formed is real। ठीक है। ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਕਨਵੈਕਸ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਰਫੇਸ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ XY। ठीक है, दिस इज अवर कन्वैक्स सरफेस और ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਮੀਡੀਅਮਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੇਅਰ ਮੀਡੀਅਮ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡੈਂਸਰ ਮੀਡੀਅਮ ਹੈ। ਰੇਅਰ ਮੀਡੀਅਮ ਦਾ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਅਸੀਂ N1 ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਡੈਂਸਰ ਮੀਡੀਅਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ N2 ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ XY ਸਰਫੇਸ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ P, that is known as pole, that you might be knowing।
और ये जिहड़ा अपने कोल स्फीयर है, स्फेरिकल सरफेस है एक्स वाई, उनका जो सेंटर बनेगा पिछे वो सी है, दैट इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि अपन पता है एक स्फीयर का पार्ट होंदा है और उनका सेंटर होएगा, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। और जो आप देखिए पी और सी में जो डिस्टेंस है इतने वो किंदे इक्वल हो जाता है, दैट इज योर आर। आर मीनस रेडियस ऑफ कर्वेचर। दिस पी सी वी कैन राइट इट एज रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, कैपिटल आर नाल आपां नूं डिनोट करते हैं। हुण देखो अपने कोल एक ऑब्जेक्ट है जिन्होंने आप ओ के उपर रखा प्रिंसीपल एक्सिस से, एक पॉइंट ले लिया ओ, उत्थे अपना ऑब्जेक्ट पिया है, उस ऑब्जेक्ट तो एक इंसीडेंट रे दैट इज गोइंग टुवार्ड्स दिस पॉइंट ए, इत्थे ए पॉइंट के उपर वो आके इंसीडेंट हो रही है रे, और उस तो बाद वो क्योंकि रिफ्रैक्शन होनी है, रिफ्रैक्शन होने तो बाद ए रे बैंड होके इट इज़ गोइंग टुवार्ड्स आई, एस आई के उपर जाके ए रे प्रिंसीपल एक्सिस नूं कट कर रही है। नाउ वी आर हैविंग टू रेज, वन रे इज दिस वन, ठीक है, जी अपनी ओ तो ए वाली साइड वाल जा रही है, और दूसरी रे अपनी ओ तो पी जिहड़ा अपना प्रिंसीपल एक्सिस है उनके अलोंग जा रही है, और ये दोनों रेज आई के उपर जाके कट कर रही हैं, देयरफॉर एक इमेज बनेगा आई के उपर, दैट विल बी ए रियल इमेज क्योंकि रेज एक्चुअल च कट हो रही हैं। हुण आपां की कर रहे हैं, हुण आपां जिहड़ा अपना सी है सेंटर ऑफ कर्वेचर दिस पॉइंट सी, इहदे तो असीं एक परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं, ठीक है, असीं इहदे तो एक ए नाल उहनूं ज्वाइन करता ए पॉइंट नाल, तां ए अपने कोल एक नॉर्मल लाइन आ जाएगी, परपेंडिकुलर आ जाएगा। आपां नूं पता है भी सेंटर नूं आपां जदों भी सर्कल के किसी भी पॉइंट नाल ज्वाइन कर दईए तो वो वाली लाइन सर्कल ते उस पॉइंट ते परपेंडिकुलर हुंदी है, वो नॉर्मल हुंदा है। देयरफॉर इत्थे अपना एन ए जो है जिहड़ी ए वाली लाइन है एन ए, दिस विल बी नॉर्मल। आ जिहड़ी लाइन है डोटेड लाइन तुहानूं दिख रही है, ये नॉर्मल हो जाएगी एट पॉइंट ए, एंड इफ इट इज़ नॉर्मल तो अपने को इंसीडेंट रे है इत्थे ओ ए, आ वाली रे अपनी इंसीडेंट है, देखो जिहड़ी इधर जा रही है ये इंसीडेंट रे, और आ वाला नॉर्मल है जिहड़ी डोटेड लाइन है, दे आर मेकिंग सर्टन एंगल, और उस एंगल नूं आपां बोलते हैं एंगल ऑफ इंसीडेंस। दिस इज अवर एंगल आई, आ जिहड़ा अपने कोल है इत्थे अपने कोल एंगल आई है, क्लीयर हो गया। सिमिलरली अपनी रिफ्रैक्टेड रे ए तो आई वाली साइड वाल जा रही है, दिस इज अवर रिफ्रैक्टेड रे, और आ अपना जिहड़ी डोटेड लाइन है दिस इज अवर नॉर्मल, और वो नॉर्मल नाल इत्थे एंगल बना रही है दिस एंगल। जब इनू थोड़ा जिहा मैनू डोटेड नूं थोड़ा मिक्स कर दियां, ज्वाइन कर दियां, तो ये अपने को एंगल बन रहे नीचे आर, दिस इज योर एंगल आर, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, क्लियर हो गया। एंगल ऑफ इंसीडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इत्थे बन रहे हैं। नैक्सट आपां की अगला स्टैप च आपां की करते हुंदे आ कि आपां जिहड़ा पॉइंट ऑफ इंसीडेंसी ए उत्थों एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया ऑन अवर प्रिंसीपल एक्सिस, इत्थों आपां ए एम, जिवें इस फिगर च तुसीं देख रहे हो ए एम इज परपेंडिकुलर ऑन योर प्रिंसीपल एक्सिस, ठीक है, देयरफॉर एंगल ए एम सी इज 90 डिग्री। इत्थे अपने कोल एंगल ए एम सी ये 90 डिग्री का है, मतलब दिस इज परपेंडिकुलर, ठीक है। और नैक्सट आपां कुछ एंगल्स इत्थे कंसीडर करांगे, ठीक है। वो एंगल्स किवें कंसीडर करते हुंदे असीं, हमेशा इक्को ही पैटर्न असीं रखते हैं जदों भी असीं इदां दा आर्टिकल करते हैं। जिहड़ा इंसीडेंट रे है, योर इंसीडेंट रे इज ओ ए, वो प्रिंसीपल एक्सिस नाल जिहड़ा एंगल बनाती है उन्होंने असीं बोलते हैं एंगल अल्फा, दिस इज योर एंगल अल्फा, ठीक है। इंसीडेंट रे मेकिंग विद प्रिंसीपल एक्सिस, दैट एंगल इज योर एंगल अल्फा, और रिफ्रैक्टेड रे इज योर ए आई, दिस दैट इज मेकिंग विद दिस एंगल विद प्रिंसीपल एक्सिस, एंड दिस इज योर बीटा, इत्थे आपां लिखिया होया बीटा, ठीक है। सिमिलरली जिहड़ा अपना नॉर्मल है ए सी या एन ए सी जिहड़ी लाइन है वो अपने प्रिंसीपल एक्सिस नाल एक एंगल बना रहा है जिन्हों आप बोलांगे एंगल गामा। तो अल्फा बीटा गामा ये तीन एंगल आपां लवांगे। दो एंगल ऑलरेडी आपां कंसीडर कर चुके हैं, एंगल आई और एंगल आर, ये आपां ऑलरेडी कंसीडर कर चुके हैं, ठीक है। एक एंगल ऑफ इंसीडेंस है, एक एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ओके। तो अपने कोल दो मीडियम्स है, एक अपने को मीडियम एंगल जिहड़ा हैगा मीडियम N1 ते एक दूसरा मीडियम है N2, ठीक है। हुण इहदे च अपने कोल जदों आपां इहनूं कंसीडर करांगे तो आपां नूं एक प्रॉपर्टी यूज़ करनी पेगी ट्रायंगल दी। वो ट्रायंगल दी प्रॉपर्टी की है कि एक्सटर्नल एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटरनल एंगल्स। जिवें आ तुहानूं इत्थे एक फिगर दिख रही है, ट्रायंगल है अपने कोल ABC, उहदे च वाला एंगल है अपने कोल 3, दिस एंगल 3 इज एक्सटर्नल एंगल, ठीक है। ये जिहड़ा एक्सटर्नल एंगल है
ये दो इंटरनल एंगल्स किहड़े किहड़े जिवें आ 1 लिखता सी आ 2 लिखता, इन्हां दोनों के सम दे इक्वल होएगा। ठीक है, ऑपोजिट आपां लैणे हुंदे इहनूं छड्ड के नाल वाले नूं, ते बाकी दे दो लैणे हुंदे। इस करके जिहड़ा 3 एंगल है दैट इज इक्वल टू 1 + 2 जिवें आपां लिख रहे हैं द रिजल्ट। ठीक है, सेम कॉन्सैप्ट आपां हुण लगावांगे अपनी एस डायग्राम दे उपर, जिहदे च आपां ट्रायंगल चूज करांगे ACI। ठीक है, वी आर चूजिंग दिस ट्रायंगल ACI। ठीक है, ये वाली ट्रायंगल आपां चूज करांगे। उहदे च देखो जिहड़ा गम है तुहाडा दैट इज एन एक्सटर्नल एंगल, दिस इज एन एक्सटर्नल एंगल। ठीक है, तो उन्होंने आपां हुण उस फिगर दे विचों जे आपां लवांगे तो यू आर गैटिंग दिस रिजल्ट कि गामा इज इक्वल टू R + β। देखो तुहाडे कोल इदां दी फिगर सी, मैं तो दोबारा दस देना तुहानूं बना के, ये अपना पॉइंट सी C, ये अपना पॉइंट सी I, ये अपना पॉइंट सी A। ठीक है, और इत्थे आपां एक्सटर्नल एंगल देता हुआ से अपने कोल गामा। आपां नूं पता अपना एंगल कितना बनता पिया सी R, आ वाला एंगल अपना कितना सीगा बीटा, दिस एंगल वाज योर बीटा। देयरफॉर दिस गामा इज इक्वल टू R + β। और इत्थों आपां R कैलकुलेट करांगे बिकॉज वी आर कंसर्नड विद I एंड R, तो आपां R दी वैल्यू लैनी है। इहदे चों आपां R दी वैल्यू ले लांगे तो गामा - β आ जाएगा। ठीक है, दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, सिमिलरली नाउ वी विल कंसीडर ट्रायंगल OAC, इधरले पासे OAC। सिमिलरली आपां वाली ट्रायंगल चूज करांगे। इस ट्रायंगल च अपना I जिहड़ा है वो एक्सटर्नल एंगल है, तो I विल बी इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। इत्थे अपने कोल आ वाला एंगल अल्फा है, आ वाला एंगल अपने कोल गामा है, तो अपने कोल I एक्सटर्नल एंगल है। देयरफॉर I इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। इत्थे सीधा ही डायरैक्टली अपने कोल I दा रिजल्ट आ रहा है। देयरफॉर दिस इज अवर सेकंड इक्वेशन। तो वी आर हैविंग नाउ टू इक्वेशंस, वन विद R एंड वन विद I। इन्हां दोनों दा आपां रिजल्ट कैलकुलेट कर लिया। नाउ वी विल यूज स्नैल्स लॉ। रीफ्रैक्शन च देखो बेटा अपने कोल स्नैल्स लॉ है जिहड़ा आपां बड़ी पर्टिकुलरली इहनूं वारी-वारी यूज करते हैं, तो इहनूं बड़े ध्यान नाल तुसीं नोट करना है। स्नैल्स लॉ की कहंदा है भी साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसीडेंस ते साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दैट इज इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट। ठीक है, अपना स्नैल्स लॉ हुंदा है। बट जो अपने कोल दो मीडियम है, दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडैक्स डिफरेंट देता होंगे, तो उदों आप इदा लैंने कि साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल टू N2/N1। ठीक है, N2 इज द रिफ्रैक्टिव इंडैक्स ऑफ द डेंसर मीडियम एंड N1 इज द रिफ्रैक्टिव इंडैक्स ऑफ द रेयर मीडियम। ठीक है, इनू जो असी एक रिलेशन बिल्कुल स्टार्टिंग तो आप गल कर चुके हैं कि आप एक अजम्पशन की सी कि अवर एंगल्स आर वेरी स्मॉल, and if the angles are very small then we are having this result कि sin of I is equal to I। we can have this भी अपना sin I जिहड़ा उन्होंने आप I लिख सकते हैं। similarly sin R ਨੂੰ ਆਪਾਂ R लिख सकते हैं because when angles are small then sin theta is equal to theta। ठीक है, तो उस रिलेशन के हिसाब नाल जो आप स्नैल्स लॉ विच आ फॉर्मूला जिहड़ा आप लै रहे सी, इस फॉर्मूला विच sin I की जगह ते we will write only I और sin R की जगह ते we will write only R that is equal to N2/N1। इनू क्रॉस मल्टीप्लाई करांगे तो I इंटू N1 इज इक्वल टू R इंटू N2। ठीक है, हुण आपां जिहड़ा I ते R दी उपर अपने कोल देखो आपां रिलेशन बनाए सी, I दी वैल्यू ते R दी वैल्यू फाइंड कीती सी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 1। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 वी फाउंड दैट I इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। इक्वेशन नंबर 1 तो अपने कोल R दी वैल्यू सी गामा माइनस बीटा। तो दोज टू वैल्यूज वी विल पुट हेयर, आप इत्थे वैल्यूज नूं पुट अप कर देंगे I दी वैल्यू और R दी वैल्यू इत्थे पुट अप करांगे। तो I अपने को अल्फा प्लस गामा, तो अल्फा प्लस गामा इंटू N1 इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा इंटू N2। दिस इज योर थर्ड इक्वेशन, ये तुहाडे कोल थर्ड इक्वेशन आ गई। ठीक है, हुण आपां अल्फा बीटा और गामा दी वैल्यूज जिहड़ियां इस इक्वेशन नंबर 3 विच फाइंड करांगे। इहदे च आपां अल्फा बीटा और गामा दी वैल्यूज नूं फाइंड करांगे। उहदे लई आपां एक रिलेशन यूज करांगे कि एंगल जो हुंदा है दैट इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। वी विल बी यूजिंग दिस रिलेशन। आपां यूज करते हैं कि थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R। ठीक है, ऐसे अकॉर्डिंगली जिहड़ा अल्फा है वो देखो एस तुहाडे कोल फिगर विच व्हाट इज अल्फा, अल्फा इज हेयर। ठीक है, हेयर यू आर हैविंग अल्फा, दिस एंगल इज योर अल्फा एंड हेयर इट इज अल्फा। तो वो आपां किंदे इक्वल आ जाऊगा, दैट इज इक्वल टू AM अपॉन MO, इहदे इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अल्फा इज इक्वल टू AM अपॉन MO। सिमिलरली बीटा तुसीं उवें फाइंड करते जाना, बीटा इज इक्वल टू AM अपॉन MI। सिमिलरली गामा, ठीक है, अलग अलग ट्रायंगल विच तुहाडे कोल गामा मिल जाएगा। गामा आपां नूं मिलेगा ACM ट्रायंगल विच, तो गामा विल बी इक्वल टू AM अपॉन MC। ठीक है, ये तीन रिलेशन तुहाडे कोल आ गई। इन्हां तीनों रिलेशन नूं आपां उत्ते जिहड़ी
अपनी इक्वेशन नंबर 3 है उहदे पुट अप कर देंगे। तो बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा इन इक्वेशन नंबर 3 वी विल बी गेटिंग am upon mo प्लस am upon mc इज इक्वल इंटू n1 इज इक्वल टू am upon mc माइनस am upon mi इंटू n2। तो ये अपने को एक रिलेशन आ गया। ठीक है, हुण इस रिलेशन तो बाद आपां ये कंसीडर कर चुके हैं कि जिहड़ा m अपना जो आप परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं आ ए एम आप परपेंडिकुलर ड्रा किया सी m इज़ वैरी नीयर टू p, m ते p विच राजे बहुत थोड़ा डिस्टेंस हुंदा है, उन्होंने आप इन्ना स्माल हुंदा है भी उन्होंंने आप नैगलैक्ट कर सकते हैं उन्ने डिस्टेंस नूं आप अप्रोक्सीमेटली मान लैंदे कि दैट इज़ जस्ट जीरो। देयरफॉर वी विल सी कि p और m दे आर जस्ट कोइंसाइडिंग, वो एक दूजे के ऊपर ही आ रहे हैं p और m। इहदा मतलब जिथे m लिखा उनकी थां ते असीं p लिख सकते हैं। तो वो जिहड़े आ साडे कोल रिलेशन सी m o उन्होंने असीं p o बनाता क्योंकि m और p दे आर वैरी नीयर। ठीक है, m c नूं असीं p c लिख सकते हैं और एम आई नूं असीं पी आई लिख सकते हैं। तो ये रिलेशन जो असीं लिखांगे इस इक्वेशन विच तो यू विल बी गेटिंग दिस रिजल्ट, यू विल बी गेटिंग दिस रिजल्ट। वट यू आर गेटिंग नाउ, यू आर गेटिंग ए एम अपॉन एम ओ सी ना, उहदी थां ते अपने कोल आ गया पी ओ, इत्थे देखो पी ओ आ गया, और ए एम अपॉन एम सी सीगा इत्थे, उहदी जगह ते आ गया पी सी। ठीक है, इंटू एन वन इज इक्वल टू ए एम अपॉन एम सी, उहदी जगह ते आ गया पी सी, एम ई सिमिलरली। ठीक है, पी आई इंटू एन टू। ठीक है, नाउ ए एम सारिਆਂ ਵਿੱਚ है गया। ठीक है, ऊपर तुसीं इहनूं कॉमन लैके कैंसल कर सकते हो। इफ यू आर कैंसलिंग इट यू विल बी गेटिंग दिस रिजल्ट 1 अपॉन पी ओ प्लस 1 अपॉन पी सी इंटू एन वन इज इक्वल टू 1 अपॉन पी सी माइनस 1 अपॉन पी आई इंटू एन टू। ठीक है, ये रिलेशन अपने को आ गया। और इस तो बाद अपने को तुसीं ये चीज़ देखोगे कि पी ओ साइन कन्वेंशन के हिसाब नाल देखांगे। हुण पी ओ देखो, पी ओ अपने को आ चीज़ है। ठीक है, आप पी तो लैके तुसीं ओ इधरले पासे जाओगे, तुहाडा ऑब्जेक्ट इत्थे पिया, पी तो इत्थे है, तुसीं लैफ्ट साइड वाल जा रहे हो, तुहाडी इंसीडेंट रे किधर नूं जा रही है, राइट साइड वाल, ओपोजिट हो गए। तो देयरफॉर ये अपने को माइनस च आपां लवांगे, माइनस यू, आ चीज़ तुसीं माइनस यू लैंदे हुए हो। पी आई इमेज डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस तुसीं पी तो आई राइट साइड वाल जाओगे और लाइट भी तुहाडी राइट साइड वाल जा रही है, देयरफॉर वो प्लस वी लिखांगे। सिमिलरली रेडियस ऑफ करवेचर पी सी वो भी राइट साइड वाल जाओगे, उन्होंने भी असी प्लस आर लिखांगे। तो वैल्यूज़ नूं असीं जदों इत्थे पुट अप करांगे तो यू विल बी गेटिंग 1 अपॉन माइनस यू प्लस 1 अपॉन आर इंटू एन वन इज इक्वल टू 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन वी इंटू एन टू। इनू आपां हुण थोड़ा की करांगे, एन वन नूं उपर मल्टीप्लाई करता, इधर एन टू नूं उपर मल्टीप्लाई करता, यू विल बी गेटिंग दिस थिंग। और नैक्सट रिलेशन विच अपने कोल आपां की कर रहे हैं, आर वाली जी वैल्यूज़ अपने को दो है, उन्होंने आप एक साइड पर लैके जा रहे हैं। एस आर वाली जी वैल्यू है इन्हू मैं इधर लै जाऊँगा राइट साइड पर, तो जोड़ा आ वाला वी वाला है इनू आप उधर ले आने। ठीक है, थोड़ा सोल्व कर लेने। एन वन अपॉन माइनस यू प्लस आ वाला एन टू बाई वी, इधर माइनस ही इधर आके प्लस हो गया, एन टू अपॉन वी इज इक्वल टू एन टू बाई आर एज सच, और एन वाई बाई आर इधर प्लस सीगा, इधर आके राइट साइड पर माइनस हो गया, माइनस एन वाई बाई आर। तो इन्होंने दोनों विचों आर नूं आपां एल्सियम लै सकते हैं, एन टू माइनस एन वन। तो दिस इज द रिलेशन, यू विल बी गेटिंग दिस रिलेशन एन वन अपॉन माइनस यू इज प्लस एन टू अपॉन वी इज इक्वल टू एन टू माइनस एन वन अपॉन आर। तो दिस रिलेशन विल डिस्क्राइब द रिलेशन रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम वैन द इमेज फॉर्म्ड इज रियल। तो बेटा ये रिलेशन तुसीं याद रखना है। ये रिलेशनस नूं असीं अगे यूज़ करते, एक बड़ा इंपोर्टेंट आर्टिकल आता है लेंस मेकर फॉर्मूला, उनदे च असीं इन्हां सारे रिलेशनस नूं यूज़ करांगे। नाउ हेयर कम्स द पार्ट सेकेंड ऑफ आवर टूडेज आर्टिकल, रिफ्रैक्शन एट कॉन्वैक्स स्फेरिकल सरफेस फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम वैन द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल। बेटा इत्थे आपां जदों इमेज वर्चुअल फॉर्म हो रहा है उनके बारे डिस्कस करते हैं, उदों आपां फॉर्मूला जिहड़ा ड्राइव कर रहे हैं। ठीक है, हुण राजे आप इनू डिस्कस कर रहे हैं कि अपनी लाइट जी है रेयर मीडियम तो डेंसर से जा रही है, जोड़ा अपना सरफेस है वो स्फेरिकल कॉन्वैक्स है, और जो इमेज फॉर्म हो रहा है वो एस केस वर्चुअल इमेज है। एक्चुअल च की हुंदा है भी जिवें आप पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये चीज़ तुसीं देख चुके हो भी अपना कॉन्वैक्स सरफेस है। ठीक है, पहले अपना जिहड़ा ऑब्जेक्ट सी अपना वो दूर सी, मतलब वो इस जगह ते सी किते,
ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਐਂਗਲ ਆਫ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਉਹ ਘੱਟ ਸੀ, ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਐਂਗਲ ਆਫ ਰੀਫਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਰੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਬਟ ਇਨ ਦਿਸ ਕੇਸ ਆਪਣਾ ਜੋ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੀਅਰ ਟੂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੋਲ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਪੋਲ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ ਆਪਣਾ ਆਬਜੈਕਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਪੋਲ ਦੇ ਨੀਅਰ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਫਾਰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਆਫ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਆਈ ਉਹ ਵੱਡਾ ਐਂਗਲ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਐਂਗਲ ਆਫ ਰੀਫਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਉਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਰੇ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਲਾਈਕ ਦਿਸ, ਇਹ ਇੱਧਰ ਕਿਤੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਧਰ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਪਸ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ ਨੂੰ ਰਿਐਲਿਟੀ 'ਚ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਰੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਕੱਟ ਕਰੇਗੀ। ਤਾਂ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਹੁਣ ਇਹ ਰਿਐਲਿਟੀ 'ਚ ਰੇ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਤਾਂ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਵਰਚੁਅਲ ਇਮੇਜ ਫਾਰਮ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫਿਗਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਡੋਟਡ ਲਾਈਨ ਹੈ ਨਾ ਰਾਜੇ, ਇਹ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਵਰਚੁਅਲ ਇਮੇਜ ਇੱਥੇ ਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਈ ਇਮੇਜ ਫਾਰਮ ਹੋਏਗਾ ਐਟ ਦਿਸ ਪੁਆਇੰਟ, ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਗੈਟਿੰਗ ਏ ਇਮੇਜ ਆਫ ਦਿਸ ਆਬਜੈਕਟ ਹੇਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਨ ਦਾ ਸੇਮ ਸਾਈਡ, ਬਟ ਦਿਸ ਵਿਲ ਬੀ ਵਰਚੁਅਲ ਇਮੇਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਧਰ ਚਲੇਗੀ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਦੈਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਟਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਇਮੇਜ ਫਾਰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੇਮ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੇਮ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਆਰਟੀਕਲ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਐਕਸ ਵਾਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਅਗੇਨ ਐਕਸ ਵਾਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਰਫੇਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਫੈਰੀਕਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੁਣ ਆਬਜੈਕਟ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਵਰ ਆਬਜੈਕਟ। ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਰੇ, ਉਹ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰੀਫਰੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਮੂਵਿੰਗ ਲਾਈਕ ਦਿਸ, ਇਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਲਾਈਕ ਦਿਸ, ਇੱਧਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ, ਵੀ ਹੈਵ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ ਇਟ ਬੈਕਵਰਡ ਲਾਈਕ ਦਿਸ, ਔਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਮੇਜ ਆਈ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਮੇਜ ਆਈ ਫਾਰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਰੇ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਵਨ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਂਗਲ ਅਲਫਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਫਰੈਕਟਡ ਰੇ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ ਨਾਲ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਬੀਟਾ, ਔਰ ਅਗੇਨ ਦਾ ਸੇਮ ਕਨਸੈਪਟ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਐਨ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣਾ ਨੋਰਮਲ ਹੈ ਐਟ ਪੁਆਇੰਟ ਏ, ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਐਂਗਲ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਵਿਦ ਦ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ ਇਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਂਗਲ ਗਾਮਾ। ਅਗੇਨ ਵੀ ਆਰ ਹੈਵਿੰਗ ਅਲਫਾ, ਬੀਟਾ ਐਂਡ ਗਾਮਾ, 3 ਐਂਗਲਸ plus 2 more angles, one is this angle of incidence and this is angle of refraction। ठीक है, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਵੇਂ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰੇਅਰਰ ਮੀਡੀਅਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਗੇਨ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਆਪਾਂ n1 ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਡੈਂਸਰ ਮੀਡੀਅਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਵੀ ਆਰ ਕੰਸੀਡਰਿੰਗ n2। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੇਮ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹੀਓ ਚੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਵੇਂ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਲਵਾਂਗੇ, ਸੇਮ ਆਰਟੀਕਲ ਸੇਮ ਚੀਜ਼। ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ OAC ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫਿਗਰ 'ਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ OAC। ਠੀਕ ਹੈ, OAC ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯੋਰ O ਪੁਆਇੰਟ, ਦਿਸ ਇਜ਼ A ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ C। ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਾਰੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਆਰ ਕੰਸੀਡਰਿੰਗ ਦਿਸ ਹੋਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ, ਇਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਐਂਗਲ I, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯੋਰ I, ਦਿਸ ਹੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲਾ NNI ਐਂਗਲ ਹੈ ਐਂਡ ਦਿਸ ਵਿਲ ਬੀ ਯੋਰ एक्सटर्नल एंगल। ये आई अपना एक्सटर्नल एंगल हो गया और 2 इंटरनल एंगल आर अल्फा एंड गामा, देयरफॉर यू आर गेटिंग दिस रिलेशन I इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। ठीक है, सिमिलरली वी विल कंसीडर AIC। ठीक है, AIC फुल ट्रायंगल, A ऑन द टॉप, I ठीक है और C, ये पूरी वड्डी ट्रायंगल अपने को जो अपन डॉटेड लाइन्स नाल दिख रही है ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ कंसीडर करांगे तो ਉਹਦੇ 'ਚ R अपने को एक्सटर्नल एंगल होएगा and you will be getting this relation कि R is equal to beta plus gamma। दिस इज योर सैकेंड इक्वेशन एंड फर्स्ट इक्वेशन। ओके, ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ I और R ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਨੈਲਸ ਲਾ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੇਮ ਕਨਸੈਪਟ sin I upon sin R। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ n2 by n1। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਐਂਗਲਸ ਆਰ ਸਮਾਲ, ਇਫ ਐਂਗਲਸ ਆਰ ਸਮਾਲ ਦੈਨ sin of I, ਠੀਕ ਹੈ, that is just equal to I and sin of R that is just equal to angle R। ठीक है, therefore we are writing I upon R is equal to n2 by n1, क्रॉस मल्टीप्लाई करके I इंटू n1 इज इक्वल टू R इंटू n2। ठीक है, फिर ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ 1 और 2 ਉਹਦੇ 'ਚ I और R ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। that value we will put here instead of I we will write alpha plus gamma क्योंकि ये ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, instead of R we will write beta plus gamma क्योंकि ये ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ। ठीक है, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਪਿੱਛੇ ਆਰਟੀਕਲ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਥੀਟਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ L upon R ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਅਲਫਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ AM/MO ਆ ਜਾਏਗੀ, गामा की वैल्यू AM/MC आ जाएगा, बीटा अपने को AM/MI है और गामा अपने को AM/MC है। वो सेम आप वैल्यूज़ नू इस इक्वेशन च तुसी पुट अप कर रहे हो, ठीक है। इन दिस इक्वेशन यू आर पुटिंग द वैल्यूज़ एंड यू आर गेटिंग दिस इक्वेशन, ठीक है। ये अपने को इक्वेशन आ गई एंड आफ्टरवर्ड्स एज यू नो P और M दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, ठीक है, बड़े नेड़े होंगे। इन्होंने मतलब MO नू आपां PO लिख सकते हैं, MC नू आपां PC लिख सकते हैं और MI नू आपां PI लिख सकते हैं। देयरफॉर वी आर चेंजिंग MO की जगह पर वी आर राइटिंग PO, इंस्टेड ऑफ MC वी आर राइटिंग PC एंड सो, ठीक है। यू आर गेटिंग दिस इक्वेशन। ये सेम चीज़ है बेटा जो आप पिछले आर्टिकल किया है, यू आर हैविंग द सेम थिंग। एंड ਇਹਦੇ 'ਚ देखो PO अपने को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट ਤੁਹਾਡਾ देखो इस फिगर ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ लेफ्ट साइड ਤੇ है, ठीक है। ऑब्जेक्ट इज ऑन द लैफ्ट हैंड साइड और P तो O वाल ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਣਾ ਪਏਗਾ। इंसीडेंट रे इज यूर मूविंग टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, ऑपोजिट है, देयरफॉर PO इज नैगेटिव, ठीक है। U अपने को माइनस आ रहा है। सिमिलरली इमेज इज अगेन ऑन योर लैफ्ट हैंड साइड, तुम इधर ਨੂੰ मूव करोगे इमेज को पहुंचने वास्ते P तो स्टार्ट करके, और थोड़ी इंसीडेंट रे राइट साइड वाल जा रही है, ऑपोजिट जा रही है। साइन कन्वेंशन के हिसाब नाल असीं इहनूं -V कंसीडर करांगे और C तुहाडा राइट साइड ते ही है। इनू आप जाना होवे तां P तो C तक आप राइट साइड वाल जावांगे। अगेन इट इज़ इन द सेम डायरैक्शन, देयरफॉर यू विल बी हैविंग +R, ठीक है। साइन कन्वेंशनस के हिसाब नाल असीं वैल्यूज़ नूं इत्थे वैल्यूज़ नूं तुसीं पुट अप करता, तुसीं AM नूं कैंसल करता। देखो इस इक्वेशन च AM यू विल बी गेटिंग कैंसल, ठीक है, क्योंकि ये सारिਆਂ ਵਿੱਚ सेम है, ऊपर है, तुसीं इन्हां नूं कॉमन लैके कैंसल कर दोगे। यू विल बी गेटिंग -1/-U क्योंकि PO अपना -U है एंड 1/PC तो डार है 1/R इंटू N1 इज इक्वल टू 1/-V प्लस 1/R इंटू N2, और तुसी N1 N2 नूं थोड़ा सोल्व कर लोगे, ठीक है। इस इक्वेशन नूं सिंपलीफाई करोगे, यू विल बी गेटिंग दिस थिंग, ठीक है। N1/-U प्लस N2/V इज इक्वल टू N2 माइनस N1/R। तो दिस इज द रिलेशनशिप विच वी आर ड्राइविंग। नाउ we are discussing the part 3 of our today's article, refraction at concave spherical surface when light travels from rarer to denser medium. In this part we will discuss refraction at concave spherical surface when our light is going from rarer to denser medium। and this beta अपने कोल जो सरफेस है ना वो कॉनकेव है। पहले आप कन्वैक्स की गल कर रहे सी, हुण अपने कोल सरफेस कॉनकेव है, बाकी चीज़ां उवें ही है। एंदे सिर्फ की होएगा, जिहड़ा तुहाडा सेंटर ऑफ करवेचर है दैट विल बी ऑन द लैफ्ट हैंड साइड, ठीक है। उदां ही तुसीं एक ऑब्जेक्ट लाओगे, ऑब्जेक्ट तो एक रे जा रही है जिहड़ी A पॉइंट के उपर, दैट इज़ इंसीडेंट रे। उवें ही आपां सेंटर ऑफ करवेचर तो A नाल ज्वाइन करांगे एक लाइन जिहड़ी कि परपेंडिकुलर हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी, CAN जिवें तुहानूं फिगर च दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो दिस इज़ योर नॉर्मल। फिर जदों आपां इत्थे देखांगे कि ये इंसीडेंट रे साडी इधर जा रही सी और वो A ते जदों A पॉइंट तो रिफ्रैक्शन हो रही है तो इट विल बी बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये नॉर्मल वाल मुड़ेगी, ठीक है। नॉर्मल इज हेयर, दिस योर नॉर्मल, ठीक है। तो दिस रे आफ्टर रिफ्रैक्शन विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, ठीक है, बिकॉज हुण अपने कोल कॉनकेव सरफेस है, ठीक है। और इस लई ये वाली रे कदे भी वापस आपां नूं प्रिंसीपल एक्सिस नूं कट नहीं कर रही। इस रे नूं पिछे प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो I पॉइंट के उपर जाके, इस पॉइंट के उपर जाके एक वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रहा है अपने कोल, तो उस नूं आपां डिस्कस कर रहे हैं। बाकी सारा कुछ सेम है राजे, सेम तुसी OAC ट्रायंगल चूज करोगे। फ्रॉम OAC ट्रायंगल वी विल बी हैविंग I इज इक्वल टू गामा माइनस अल्फा। सेम कॉन्सैप्ट है, अल्फा बीटा गामा आपां लवांगे एंगल्स। अल्फा है जो अपना इंसीडेंट रे विद प्रिंसीपल एक्सिस फॉर्म करी अल्फा है, जिहड़ा अपना रिफ्रैक्टेड रे है वो प्रिंसीपल एक्सिस नाल जिहड़ा एंगल फॉर्म करी दैट इज़ बीटा। You can see from here in this figure it is alpha, here it is beta, and जो अपना नॉर्मल है वो जो एंगल फॉर्म कर रहा है दैट इज़ गामा, ठीक है। तो उही आप रूल लगावांगे ट्रायंगल लॉ वाला भी, जिहड़ा एक्सटर्नल एंगल है दैट इज़ सम ऑफ टू इंटरनल एंगल्स। वो लगा के तुसी सिमिलरली यू कैन कैलकुलेट R इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा। फिर आप स्नेल्स लॉ नूं यूज़ करांगे, सेम कॉन्सैप्ट
एज इन द प्रीवियस सेक्शन, ठीक है। यू विल बी गेटिंग आई बाई आर इज इक्वल टू N2 बाई N1 क्रॉस मल्टीप्लाई करांगे, फिर आप वैल्यूज़ पुटअप कर देंगे आई ते आर दी इस जगह ते, ठीक है। फिर आप एक रिलेशन आप पीछे भी लगाया सी कि थीटा इज इक्वल टू L बाई आर, वो लगा के आप गामा की वैल्यू अल्फा बीटा गामा तिना की वैल्यूज़ में पुटअप कर देंगे AM बाई MC, AM बाई MO, AM बाई MC, AM बाई MI, ठीक है। फिर आप किया सीगा कि M ते P दोनों बड़े नज़दीक हैगे है, उन्होंने करके, ठीक है। फिर आप P तो जो कैलकुलेट करांगे तो विल बी गेटिंग दिस रिजल्ट, ठीक है। दिस इज़ द रिजल्ट जदों अपने कोल जिहड़ी अपनी रे है वो हुण आ रही है रेयर मीडियम तो और डेंसर मीडियम च उन्हें जाना है, और जिहड़ा अपना रिफ्रैक्टिंग सरफेस है वो किदां दा है, कॉनकेव है। इन दैट केस यू आर गेटिंग दिस रिजल्ट माइनस N1 अपॉन U प्लस N2 अपॉन V इज इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन R। हाँ जी बेटा, अज अपने आर्टिकल नूं करन तो बाद यू माइट बी एबल टू ड्राइव दिस रिलेशन, ठीक है। इहदे च आपां U V ते R विच जिहड़ा रिलेशन है वो जदों साडी लाइट इंसीडेंट हो रही है ऑन सफेरिकल सरफेस आइदर ऑन कॉनकेव और कॉन्वैक्स, तो आपां ये वाला जिहड़ा रिलेशन है वो फाइंड कर चुके हैं। N1 अपॉन माइनस U प्लस N2 अपॉन V इज इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन R, ठीक है। तो ये तुसी अच्छी तरह मैनू पूरी उम्मीद है कि तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ बड़ी अच्छी तरह सारी चीज़ समझ आई है, और हुण तुसी इहनू रिवाइज़ करोगे। रिवाइज़ करन तो बाद बेटा इहनू एक बारी अपने आप लिख के देखना आर्टिकल नू, फिर तुहाडा ये आर्टिकल वधिया तुसी तरीके नाल एग्जाम विच भी वधिया कर सकते हो। एंड थैंक यू वेरी मच, तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ बहुत बहुत शुक्रिया, तुसी बड़े प्यार नाल लैक्चर नू सुनिया। एंड कीप लर्निंग, ऑल द बेस्ट।